Hello students, today we will discuss how to use of some important pronouns, adjectives and adverbs in sentences. Use of some important pronouns, adjectives and adverbs in a sentences. First of all, we discuss about how to use of any. Any ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਰੀਡ ਐਨੀ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਬੁੱਕਸ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਲੈਫਟ। ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਬ ਬਚੇ ਹਨ। ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼, ਹੀ ਕੈਨ ਕਮ ਐਟ ਐਨੀ ਮੋਮੈਂਟ ਨਾਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਐਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਨਦਰ। ਅਨਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅਨਦਰ ਚਾਂਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਸਪੀਕਸ ਅਨਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਨਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਥਿੰਗ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਆਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਔਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਔਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਊਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਡਰਿੰਕ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲਕ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰੈਡੀ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਰੈਡੀ। ਉਹ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼, ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਡ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਦਰ ਔਰ ਨੈਦਰ। ਐਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੈਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਦਰ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੈਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੋਲਵ ਐਦਰ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ
नहीं कर सकता, मीनस दोनों के विचों कोई भी नहीं। यू कैन यूज ऐदर मैथड, तुसी इन्हां तरीकों विच किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हो। नैदर वे इज़ ईजी, दोहां विचों कोई भी तरीका आसान नहीं है। लास्ट सेंटेंस इज नैदर ऑफ हिज बुक्स वाज स्पैशल, उसकी कोई भी किताब खास नहीं सी। ऐदर दी वरतों दो वस्तुआं जां व्यक्तियों लई और नैदर दी वरतों उन्हां दो वस्तुआं जां व्यक्तियों विचों कोई भी नहीं, भाव नैगेटिव लई। अगे असीं गल करांगे यूज ऑफ ईच। ईच की वरतों असीं टू और मोर दैन टू, दो जां दो तो ज़्यादा लई ईच यूज करते हाँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रीड ईच ऑफ दीज बुक्स, मैं इस विचों हरेक किताब पढ़ी है। वी इनवाइटेड ईच ऑफ देम, असीं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा दिता। ईच ऑफ देम बॉट दैट बुक, उन्हां विचों हरेक ने वो किताब खरीदी। ईच की वरतों टू और मोर दैन टू दे लई कीती जाती है। अगे असीं गल करांगे यूज ऑफ बोथ। बोथ की वरतों फॉर टू, दो दे लई असीं बोथ यूज करते हैं। दो वस्तुआं जां दो व्यक्तियों के लिए असीं बोथ यूज करते हाँ। बोथ सरोज एंड किरण आर माई फ्रेंड्स, सरोज अते किरण दोवें मेरियां सहेलियां हन। आई वांट बोथ ऑफ दीज बुक्स, मैनू ये दोवें किताबां चाहिदियां हन। बोथ ऑफ दिम कम हेयर एवरी डे, वो दोवें इत्थे हर रोज़ आउंदे हन। ही इज़ बोथ अ राइटर एंड अ पबलिशर, वो लेखक अते प्रकाशक दोनों हन। बोथ की वरतों असीं दो दे लई करते हाँ। दो वस्तुआं जां दो व्यक्तियों के लिए असीं बोथ यूज करते हैं। अगे असीं गल करांगे फ्यू एंड लिटल। लिटल एंड फ्यू की वरतों बारे। फ्यू की वरतों असीं काउंटेबल वस्तुआं दे लई करते हाँ। गिणनयोग वस्तुआं दे लई असीं फ्यू की वरतों करते हाँ। एंड लिटल की वरतों असीं क्वांटिटी और अनकाउंटेबल के लिए करते हाँ। फ्यू की वरतों असीं काउंटेबल के लिए एंड लिटल की वरतों क्वांटिटी मात्रा और अनकाउंटेबल ना गिणनयोग के लिए असीं लिटल की वरतों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हां एग्जाम्पल्स तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। देयर इज़ लिटल होप ऑफ हिज गैटिंग बैटर, उसके ठीक होने की बहुत घट उम्मीद है। आई हैव रीड फ्यू बुक्स ऑन दिस सबजैक्ट, मैं इस विषय ते थोड़ियां जहियां बहुत घट किताबां पढ़ियां हन। इट रेनड अ लिटल लास्ट नाइट, कल रात थोड़ी वर्खा हुई। ही गेव अस अ फ्यू एग्जाम्पल्स, उसने सानू कुछ उदाहरण दित्तियां जां उसने सानू कुछ उदाहरण दिते। अगे वी हैव अ लिटल टाइम टू थिंक, साडे कोल विचार करने लई थोड़ा समा है। अ लिटल पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, थोड़े संजम की लोड़ है। अगे असीं गल करांगे एवरी, कि असीं एवरी नूं सेंटेंस दे विच किस समय यूज करना है। यूज ऑफ एवरी, एवरी की वरतों असीं मोर दैन टू दे लई करते हाँ। एवरी की वरतों असीं मोर दैन टू दे लई करते हाँ, दो तो ज़्यादा दे लई असीं एवरी यूज करते हाँ। एवरी सेंटेंस इन हिज लैटर हैड सम मिस्टेक, उसदे हरेक दे उसदे पत्र दे हरेक वाक विच कोई ना कोई गलती सी।
Next sentence is we meet each other every other Sunday. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। He comes here every Sunday. ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Everyone और everybody is ready. हर कोई तैयार है। Gold is everywhere. Sorry, God is everywhere. परमेश्वर हर जगह है। God is everywhere. परमेश्वर हर जगह है। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ use of many and much. many ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਔਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਮਚ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਮਚ ਬੈਟਰ ਨਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। Okay students. Hello students, as you know we have been starting the 17th lesson. In the today's video we will discuss about the next part of the lesson 17th. First of all we will discuss about the using of next. Students, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਹੂ ਲਿਵਸ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਯੂਅਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। I will meet you next week. मैं तैनू अगले हफ्ते मिलदा हाँ। What happened next? फिर की होया। Students, next ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਗਿਣਨਯੋਗ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਗਿਣਨਯੋਗ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਨਾ ਗਿਣਨਯੋਗ। ਮੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਈ ਕਾਂਟ ਵੇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ these days he is working more than usual. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ we need 2 more days to finish this work.
ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ most. We also use most for countable and uncountable. For example, most of my friends are businessmen. मेरे ज़्यादातर मित्र व्यापारी हैं। Most people don't know when to shut up their mouth. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होंदा कि अपनी जुबान कदों बंद रखनी है। लास्ट सेंटेंसेस, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज अदर। वी यूज अदर फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन। We use other for singular and plural nouns. For example, we met him the other day. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। What other facilities are available here? ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। We use other for singular and plural nouns. फर्स्ट सेंटेंस दे विच डे सिंगुलर नाउन है एंड सैकेंड सेंटेंस दे विच फैसिलिटीज़ प्लूरल नाउन्स है। नेक्स्ट इज सम। वी यूज सम फॉर काउंटेबल एंड क्वांटिटी। सम की वरतों असीं गिणनयोग अते मात्रावाचक वस्तां दे लई करदे हां। फॉर एग्जाम्पल, सम फूल मस्ट हैव डन दिस। किसी मूर्ख ने ये कीता होवेगा। कुड यू लैंड मी सम मनी? कि तुसी मैनू कुछ पैसे उधार दे सकते हो। थर्ड सेंटेंस इज कुड यू गेट मी सम टी? कि मेरे लिए थोड़ी चाह लियाओगे। अगे नेक्स्ट है देयर इज समवन एट द डोर। दरवाजे ते कोई है। आई हैव सीन यू समवेयर। मैं तेनू किते वेख्या है। लास्ट सेंटेंस इज लैट अस गो समवेयर एल्स टू टॉक। असी गल करन लई किसी दूसरी थां ते चलदे हां। वी यूज सम फॉर काउंटेबल एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट इज आउन। आउन पोसैसिव एडजैक्टिव है। आउन नूं जेकर पंजाबी दे विच ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ है अपना। इस दे यूजिंग रिलेटेड एग्जाम्पल्स तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल वेरी सून हैव माई आउन हाउस। मेरे कोल छेती ही मेरा मकान होवेगा। दिस इज़ माई आउन आइडिया। ये मेरी अपनी कल्पना है, ये मेरा अपना विचार है। आई हीयर्ड दिस विद माई ओन ईयर्स। मैं ये अपने कन्नां नाल सुनिया है। नेक्स्ट इज सच। वी यूज सच फॉर एडजेक्टिव प्लस नाउन और नाउन। इसका जेकर पंजाबी दे विच इसनूं ट्रांसलेट करिए तो इसका मीनिंग है इस तरह जां अजिहा। स्टूडेंट्स, सच की वरतों असीं एडजैक्टिव प्लस नाउन दे नाल जां केवल नाउन दे नाल करदे हां। भाव कि सच की वरतों एडजैक्टिव प्लस नाउन तो पहलां कीती जांदी है जां केवल नाउन तो पहलां कीती जांदी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नैवर रीड सच अ गुड बुक। मैं इन्नी चंगी किताब कदे नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नैवर सीन सच क्रूअलिटी बिफोर। मैं अजिहा जुल्म पहलां कदे नहीं देखा।
स्टूडेंट्स फस्ट सेंटेंस दे विच जो गुड है ये एडजैक्टिव है, उस तो बाद बुक वर्ड है नाउन है। सो फस्ट सेंटेंस दे विच असीं सच की वरतों एडजैक्टिव प्लस नाउन तो पहला कीती है। एंड सैकेंड सेंटेंस दे विच करेलुटी ये नाउन है, इस तो पहला असीं सच की वरतों कीती है। स्टूडेंट्स नैक्सट है दिस, दीज, दैट, दोज। हुण असीं गल करांगे कि असीं दिस, दीज, दैट एंड दोज नूं कदों यूज़ करना है। दिस की वरतों असीं नीयर एंड सिंगुलर नाउन दे लई करदे हां। मीनस कि जो वस्तु एक है एंड नेड़े पई है उस दे लई असीं दिस यूज़ करदे हां। दैट की वरतों असीं फॉर एंड सिंगुलर नाउन दे लई करदे हां। मीनस कि जो वस्तु दूर है एंड सिंगुलर है उस दे लई असीं दैट यूज़ करांगे। अगे है दीज। दीज की वरतों नीयर एंड प्लूरल नाउन दे लई असीं करदे हां। मीनस कि जो वस्तुआं नेड़े हन बट प्लूरल फॉर्म दे विच हन, मीनस ज़्यादा हन, उन्हां दे लई असीं दीज यूज़ करांगे। अगे लास्ट है दोज। वो वस्तुआं जो दूर ने फॉर एंड प्लूरल फॉर्म दे विच ने। वो वस्तुआं जो दूर पईआं ने ते ज़्यादा गिणती दे विच ने, उन्हां दे लई असीं दोज यूज़ करांगे। इन्हां एग्जांपल्स तो तुहानूं पूरी तरह दिस, दैट, दीज एंड दोज की वरतों बारे क्लीयर हो जाएगा। दिस इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ डॉग, these are dogs, those are dogs, this is a hen, that is a hen, these are hens, those are hens, this is a boy, that is a girl, these are boxes, don't touch this pen, is this your idea, was that your idea, he had come here this morning, this is Kamal, my friend। स्टूडेंट्स अपना 17th लैसन कंप्लीट हो चुका है। मैनूं उम्मीद है कि अज दी वीडियो दे विच जो तुहानूं समझाया गया उस बारे तुहानूं समझ लग गई होवेगी। ओके स्टूडेंट्स।